پرویز الہی لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایسے الیکشن کی طرف ہم نے فوری جانا ہے اور کس طرح الیکشن ہوگا، کیا پروسیجر ہوگا، یہ سارا اس حوالے سے لانگ مارچ جو ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پولیس کی جو دیکھ رہے ہیں ہماری دہشت گردی آئی ہے، یہ بڑی حیران کن ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا کر دی ہے یہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے نے، اور اس کے بیٹے کو پتہ ہے کہ اس کی حکومت نہیں ہے، وہ سارا جیلی پروگرام یہ چلا رہے ہیں۔ اور ہم نے ثابت کر دیا ہے اسمبلی کے اندر، دیکھیں ایز اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس میرا فرض ہے میں تمام ایم پی ایز کا لک آفٹر کروں، اور انہوں نے سارے ایم پی ایز کے گھروں میں رات کو جا کے چھاپے مارتے رہے ہیں، رات کو جا کے چادر اور چاد دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا ہے، اور گھروں میں خواتین کو نہیں دیکھا، ان کی اپنی نہیں ہے خواتین، ان کی یہ کیا سمجھتے ہیں آئی جی، اس نے ادھر ہی رہنا ہے، اس نے بھی انشاءاللہ اندر ہونا ہے، یہ دن آئے گا۔ اور یہ پہلا کیس اس کا اسمبلی سے ہوگا جو اس نے بدنام کیا ہے نا۔ سارے یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہیں، جو کامن ویلتھ پارلیمنٹ ہے، ایون انڈیا کی پارلیمنٹ نے بھی کنڈیم کیا ہے۔ تو یہ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ پرانا جو وہ رانا ثناء اللہ والا گلو بٹ جو ہیں سارے یہ لے آئے ہیں وہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں، چیف سیکرٹری سے لے کے آئی جی سے لے کے یہ ڈی سی، یہ نوٹ کر لیں۔ اور میں نے کہا ہے سب کو کہ جس طرح یاسمین راشد کو اور میاں اظہر صاحب کے گھر، حماد اظہر کے گھر گئے ہیں، محمد الرشید کے ساتھ کیا ہے، اور جو خواتین ہماری رہنما ہیں ان کے ساتھ کیا ہے، یہ کوئی ایسے رائے گاہ نہیں جائے گا۔ سارے ثبوت بھی اکٹھے کر لیے اور ایک ایک سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایک کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور دراصل گھبراہٹ کیا ہے کہ اتنی مقبولیت، جہاں عمران خان صاحب کال دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور جلسے ان کے دیکھ کے نا یہ دہل گئے ہیں، اور یہ بہانہ لگاتے ہیں بارش ہو گئی ہے جلسے میں۔ اکاڑے کو کیوں نہیں گئے یہ دونوں بہن بھائی کیوں نہیں گئے اکاڑے جلسہ رکھ کے؟ جانا چاہیے تھا ان کو، پہلے انتظار کرتے رہے۔ انتظار کس کا کرتے رہے کہ چلو بارش ہی ہو جائے، وہ انہوں نے سنی گئی۔ اور اس کے بعد اور پھر یہ سارے عدالتوں میں کیسز ہیں اور رائپ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلد وہ فیصلے بھی آنے والے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے، مال ٹاؤن میں ہماری ایک ایم پی اے ہیں 80 سال کی ایج ہے ان کی، اور راشدہ جو ہیں، تو وہاں انہوں نے جا کے تو جو اودم مچایا۔ اسی طرح گلبرگ میں علامہ اقبال کی جو بہو ہیں جسٹس ناصرہ جوید اقبال کے گھر کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ باپ بیٹا دونوں علامہ اقبال کے جو ہیں یہ شعر پڑھتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو شعر پڑھنے کی۔ اور اسی طرح شہباز شریف، اور یہ ابھی تو دیکھیں یہ راشدہ کو انہوں نے جو مال ٹاؤن میں کیا ہے، ہراساں کی ہے بیچاری کو، وہ پہلے ہی 85 سال کی خاتون ہے ایم پی اے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے وہاں ان کے بہو بیٹیاں سارا سب کو جا کے گراؤنڈ میں اکٹھا کر کے تو بڑے بنتے رہے ہیں وہ بلٹ اور دکھاتے رہے ہیں اس کو۔ اور یہ اصل میں یہ رپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ مال ٹاؤن کے جو کیس ہیں، ثانیہ مال ٹاؤن میں ان کو سزا نہیں ہوئی بیوروکریسی کو۔ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ یہ تو کیس ہی وہ ہیں مرڈر کیس کے سرغنہ ہیں، اور شہباز شریف اور حمزہ شریف نے جو بندے دیے تھے سب کو پتہ ہے، اور جو کمشنر لاہور ہے سب کو پتہ کہ یہ وہی آدمی ہے، اس وقت ڈی سی لاہور تھا جس نے سارا آرگنائز کیا تھا، اور اس وقت کمشنر کو بھی چیف سیکرٹری کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پکڑ پکڑ کے سزا ہوگی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کی حاملہ عورت کی بیٹی ساتھ کھڑی تھی اس کے منہ میں انہوں نے گولیاں ماری ہیں، تو وہ اسی طرح رائے گاہ جائے گی، اس کی جو چیخ ہے وہ 7ویں آسمان تک پہنچی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔
अब आप देखेंगे आँखों के सामने एक एक इनके ख़ानदान का बंदा ज़लीलो ख्वार होगा और इनको समझ नहीं लगेगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी किया है ये अपने लिए पूरा किया है, ये अपने हाथ पाँव काटे हैं और एक ऐसी बुरी मिसालें इन्होंने कायम की हैं कि ये ट्रेडिशन कायम कर रहे हैं जहाँ हमने असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन की और ख़त्म नबूवत के हवाले से काम किया, उसी असम्बली में इन्होंने तोड़ फोड़ की। राणा मशहूद ने और जितने ये गुंडे थे सारे नून लीग के, और जो कुछ इन्होंने वहाँ किया है वो भी आपके सामने है। एक एक का इनसे हिसाब लिया जाएगा और अल्लाह के फजल करम से ये ख़ास तौर पे पुलिस को और उनके लोगों को जिन्होंने किया है ये कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। ये देर हो सकती है, देर नहीं हो सकता। अब आपने कोई सवाल? सब ये बताएं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, 30 तारीख का इजलास हमने बुलाया हुआ है। कल रात तकरीबन 2 दर्जन MPs के घरों पे रेड हुई है, उनके दरवाजे तोड़े गए। इस मौके पर एक तो आप आज खुद कुछ ले सकते हैं नोटिस या खाने असम्बली की तरफ से कोई इस्तेहकाक का आ गया, इस्तेहकाक के लिए कहा गया, तो मौजूदा IG को और इन लोगों को तलब किया? बिल्कुल, हम तलब भी करेंगे, इजलास भी बुला रहे हैं, हम इजलास बुला रहे हैं पहले 30 तारीख से पहले। हाँ जी, पहले इजलास तो ऑन है ना। अच्छा, इस वक्त जो कशीदगी जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है सियासी जमातों के अंदर, इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि अगर कोई डेडलॉक पैदा होता है तो ये ना हो कि जमहूरियत ही निकल हो जाए। आपका एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है हमेशा से, तो ऐसे मौके में इमरान खान के साथ आप हैं तो कोई मीडिएशन का कुछ किरदार आप अदा कर सकते हैं या इसके चांसेस हैं? उनको पता है, जो आए हैं ना ये नए तोहफे जो पेश हुए हैं, उनको पता है किसके ज़रिए से क्या बात करनी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक आसिम अली जरदारी की मुलाकात होती है, उसके बाद हुकूमत ये फैसला करती है कि आईनी मुद्दत हम अपनी पूरी करेंगे, क्या किसी अदालों की तरफ से इनको गारंटी दे दी गई है या फिर इनका अपना ये फैसला है? ये तो अदारे बता सकते हैं या जरदारी साहब बता सकते हैं। अच्छा, जो साहब ये फरमाइएगा कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाक़या पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन, शहीद केड़ी गल उसको गोली लगी है, तो क्या आप समझते हैं कि जो इस आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है, और उसकी बेटी है, उसकी बहनें हैं, बहू है, उसकी बीवी है। आप उसके घर इस तरह दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो क्या समझेगा कि डाकू आ गए, और डाकुओं के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है उसके साथ। राणा सनाउल्लाह फरमाता है कि उकसा रहे हैं रियासत के साथ, वो तो खुद मुजरम है सबसे बड़ा, ये माल्टोन का सरगना है। अच्छा, जो इस वक्त अभी खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने दोबारा स्टेक होल्डर्स जो हैं मुल्क के, उनके हवाले से बात की कि ये सब देखें, अगर ऐसा हो कि मतलब थोड़ा बहुत जो स्टेप बैक खान साहब को भी करना पड़े और ये तमाम तर मामला को बैठ के अगर इसको देखें तो वो बेहतर नहीं है? देखें जी, खान साहब के साथ जो कोई बात करने वाले हैं वो जब बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात जब करेंगे शुरू तो आगे बढ़ेगी। इमरान खान साहब को तो अदम एतमाद के जरिए हटाया गया ना, ये एक राइट था उस वक्त की अपोजिशन का, उन्होंने नो ट्रस्ट वोट फाइल किया, वो कामयाब हो गया, इमरान साहब चले गए, तो बजाय इसके कि वो इंतज़ार करते हुए 1.5 साल बाद इलेक्शन हो जाने थे, तो ये लॉन्ग मार्च करने की और इस तरह की पॉलिटिक्स की क्या ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत थी कि मुल्क बैठ रहा है, मुल्क की मईशत बैठ रही है, और ये बिल्कुल इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि ये शायद खुदा न खास्ता ये हमारा मुल्क जो है ये बाहर से बैठ के चलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी नेगेशन बड़ी ज़रूरी है। तो वो उसके साथ ये तय करना ज़रूरी है कि फौरी तौर पे कौमी सतह पे इलेक्शन हो। ये फरमाइएगा कि आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, ये जो पकड़ दकड़ हो रही है इससे क्या लॉन्ग मार्च रोका जा सकता है या किस तरफ हालात जा रहे हैं? क्या आप समझते हैं हालात ख़राब कौन कर रहा है? देखें जी, ये इनके अंदर बड़ी कैपेसिटी है। जैसे जो पहला धरना हुआ था, जो जिसमें फिर माल्टाउन का जो वाक़या है अभी मैंने आपको बताया है
वहाँ जो इनकी हैंडलिंग की कारकर्दगी है। और ये राना सनाउल्लाह तो ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, मेरे पास रिकॉर्ड मैंने इकट्ठा किया हुआ है, वो इंशाल्लाह जब अदालत लगेगी दहशत गर्दी की तो वहाँ दिया जाएगा, जिसमें उसने कहा है हाँ जी तो ये स्टेट विद इन स्टेट बन रही थी। भाई उधर जो चेक पोस्टें भरी थी वहाँ डाके पड़ रहे थे, तो शहरियों के कहने के ऊपर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर वो बने थे। अच्छा साहब, ये जो राना सनाउल्लाह का ये कह रहे हैं साहब जो है वो इस एहतजाज में, इस धरने में, इस सारे मामलात में आप अपने वर्करों को क्या हुक्म देते हैं? उनको हुक्म दे दिया गया है, जो ही खान साहब की कॉल आई है सब इंशाल्लाह वहाँ पहुँचे। अच्छा सर ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, राना सनाउल्लाह ने कि ये जो लॉन्ग मार्च रोकने का और सख्ती से निबटने का फैसला किया गया है, ये तमाम यार एक मिनट सवाल कर रहे हैं, तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेकर किया गया है, तो उसमें तमाम इत्तेहादियों में जोधी सादिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी शामिल हैं, तो क्या कल को कोई इस तरह का एडवेंचर होता है, लाशें गिरती हैं, तो इन दोनों के खिलाफ भी पर्चा करवाएंगे आप? देखिए जी मेरी बात सुने, वो इस काम में है ही नहीं है दोनों, ना उनकी तबीयत में है ये है, ना उनके पार्टी के मंशूर में ये है, और ना ही पार्टी की तरफ से उन्हें कोई इजाज़त है। तो शुजा साहब पार्टी के सदर हैं, बिल्कुल सख्ती के साथ उनको मना किया गया है कि आप जाके अपना अपना काम किसी का भला कर सकते हैं तो वो करें। अच्छा जैसा ये फरमाइएगा, आपसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल्स जो हैं उनको अपने ओथ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी उन्होंने एक मुतालबा किया है कि इस सारी सूरत हाल में न्यूट्रल्स को अपने ओथ को डिफेंड करना है। आप भी ये मुतालबा कर रहे हैं उनसे न्यूट्रल से कि वो अपने ओथ का तहफ़्फ़ुज़ करें? देखें जी, खान साहब ने बड़ा ही सोच समझ के ये सारा प्लान बनाया और उनके जो इत्तेहादी हैं उसमें हम हैं और कुछ आज़ाद लोग भी हैं, बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इमरान खान के जितने एक एक करके उनका साथ छोड़ गए, सिर्फ आप साथ खड़े रहे, आज आपको उस फैसले पर अफसोस नहीं है? आज हमें खुशी है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मैंने तो शुक्राने के नफल पढ़े थे जब ये फ़ैसला हुआ था, और आप देख लें अब कौम को ये साबित हो चुका है कि हमारा जो फ़ैसला वो सही था। आपने एक खान साहब को एक मशवरा दिया था, एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि हमें फौज को टारगेट नहीं करना चाहिए, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या खान साहब ने आपके मशवरे को माना, और क्या अब दोबारा कोई ताल्लुकात की बहाली की तरफ मामला चले हैं, ताल्लुकात बहाल हुए हैं फौज के इमरान खान? जी हो रहे हैं उनके साथ, तभी तो जब वो बैठेंगे वो ज़ाहिर है वो सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं इमरान खान साहब के साथ फ़ौज है और अदालतें हैं, अदलिया है, और अदलिया बिल्कुल इंसाफ मिल रहा है। खान साहब अब तारीफ़ कर रहे हैं उनकी। इलेक्शन कमीशन में देखें इंसाफ नहीं हुआ, इनके जो लोटे हैं सारे फारग हो गए, 20 के 20, उनको अब सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसी हवाले से आप अदलिया से कोई मुतालबा करेंगे कि वो आज की सूरत हाल पुलिस एहलकार भी जाम हुआ? जी वो अदालत में मेरे शफकत महमूद साहब से बात हुई है, अदालत चले गए हम, PTI चले गए, वो कर रहे हैं, बल्कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी उन्होंने रिट दायर कर दिया। चौधरी साहब आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, एक बात खुल के थोड़ा सा बता दें, चूँकि बार बार न्यूट्रल्स की भी बात होती है, अफवाज पाकिस्तान को आपका क्या मशवरा है, हुकूमत के साथ रहें या इमरान खान की तरफ हो जाए? बस ये देखें जी, हमेशा वो पाकिस्तान के साथ रहे हैं, हमेशा उन्होंने बड़ा सब्र तहम्मुल, उन पर तनकीद भी करते हैं सियासतदान, कोई लोग तो इस हद तक भी जाते हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, बुरा भला भी कहते हैं। उन्होंने अपना काम करना है, उनका फ़र्ज़ है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान की जो मुश्किलें, मुसीबतें, आफतें, फ्लड की शक्ल में, ज़लज़ले की शक्ल में हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वो ये काम करते रहेंगे, हम उनका भरपूर साथ देते रहेंगे। वफाकी काबीना ने फैसला किया कि हर ताकत का जो अफसर है उसके साथ इस लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। पंजाब हुकूमत ने कंटेनर एक जानिब लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी जानिब कोयटा के मनाजिर जहां साबिक वज़ीर आला जाम कमाल मीडिया से बात कर रहे हैं।